मैं सॉरी कहना चाहूँगी, वेरी 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 सॉरी सबको। मेरी वजह से आज देर हो गई। एक्चुअली मैं एक डब में थोड़ा वक्त लग गया था, सो थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंस। थैंक यू सो मच। यस, Thank you. सेम टू सेम। पर मेरी कोई डबिंग नहीं थी, पर मैं श्रद्धा के साथ आना चाहता था, तो अभी साथ में आ गए तो शुरू कर सकते हैं। Yes, थैंक यू please. फॉर बीइंग सो पेशेंट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप wanna खड़े रहना stand चाहते हैं? ठीक है, तो हम खड़े रहेंगे। Us Digital Store is a leading store in India in electronics retailers. We have in more than 600 cities, 2,000 plus stores, and we focus on technological affordability and accessibility. And we know that you guys are coming back to the store. So how do you feel being here? आई थिंक पहले तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, सायरन बजे जा रहा है जब से हम लोग आए हैं। कोई वहां पे खड़ा हुआ है जो हट नहीं रहा, इसलिए वो आवाज आए जा रही बार बार। हाँ, क्या बात है, थैंक यू। No, it feels really good to be back. Of course, when you're living in a city like Mumbai, you hardly have time to go out and shop. But to have a place like this that's a one-stop shop for everything possibly where technology is concerned, you're always happy to be here. And I've been here to shop also myself. So yes, it's very, very nice, whether it's televisions, whether it's sound systems, whether it's accessories for your telephone, which becomes a must. Portable charger सब ढूंढते रहते हैं ना, बाकी सबके चार्जर ढूंढते रहते हैं, तो यहाँ से आज सब portable charger खरीद के लेके जा सकते हैं. But no, it feels really nice to be here. Thank you, and we are glad that you're back here. We wanted to know that everybody is so much into technology. So, what is that? How important is technology for both of you? And how do you keep yourself abreast with the latest technological trends? टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम सब भाई लोग की प्रॉब्लम हो जाएगी ना. तो टेक्नोलॉजी हम सब के लिए इसलिए भी जरूरी ताकि इन सब से कनेक्ट कर सके और फिर और लोग से कनेक्ट कर सके. सो टुडे दे टेकिंग पिक्चर्स, टुडे दे shooting us, even the questions that they ask, they record, whether it's your cell phone, whether it's a recorder. Everything needs technology in every single aspect, so it's important to all of us. I think we are no exceptions. But as actors, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उतना बेहतर काम, उतने अच्छे फोटोज. बिल्कुल, इनफैक्ट इनके कैमरा देखिए क्या हाईटेक हटके है. पहले पहले डाकुओं के पास बंदूकें होती थी, अभी इधर फोटोग्राफर के पास जो ऐसे लंबी लेंस के साथ होती है ना. और मतलब लेंस भी एकदम स्टाइलिश ऐसे निकालते हैं फिर चेंज करते हैं, है ना. लुक एट हिम, वो शर्मा भी रहे, इनको पता है. तो टेक्नोलॉजी आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है. आई थिंक हम सब अग्री करेंगे. एंड पर आई थिंक कि टेक्नोलॉजी को लाइफ में एक बैलेंस तरीके से यूज़ करना चाहिए. किसी भी चीज़, किसी भी डिवाइस के साथ ज़्यादा एडिक्टेड नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक. तो moderation में you should use technology. You should not get obsessed with it. Right. How excited are you all? It's released today, and you all are here to meet the press and everyone around. How excited are you? Very, very excited. The response has been so good. It's been so amazing. We've been promoting for the last 20 odd days. So you kind of, today is the first day where you get to breathe. And you kind of simmer down. You don't have to wake up early in the morning and go to a city or do an event immediately. So it's nice to soak it all in. और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने के साथ साथ ये भी अच्छी बात है कि फाइनली जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की थी वो अब लोगों के सामने है. तो यू फील, कल मैंने किसी को कहा, ऐसा लगा कि अब बेटी हमने आपके हाथ कर दिया, अब आप संभाल लेना. यू नो, इट फील्स लाइक दैट. यू लिटरली लेट गो. इट्स लाइक दैट. कल किसी से बात कर रहा था और मैं बहुत फिल्मी हो गया. मैंने बोला हाँ, अब ऐसा लगता है कि शादी की रस्म पूरी हो गई, अब आपकी जिम्मेदारी. इट रियली फील्स नाइस टू लेट गो ऑफ अ फिल्म इन द नाइसेस्ट वे, व्हेन द ऑडियंस इज एंजॉयिंग इट. And from across the country when you're getting response, that's the best part. So Arjun, this is your second venture with Chetan Bhagat on his second book. How has the experience been this time? Really? मुझे पता ही नहीं था. I think इस सवाल का जवाब हम बहुत बार दे चुके हैं, but it always feels good when you get good material to work out of as an actor, and I'm very, very happy and delighted about the fact that it's a book that's been loved by so many people, and now we get to put it out on the big screen for many more people. So I think all the effort is to do justice to the material as well as create your own imagination and visualization of it. So I'm really, really happy that I've got another chance to do a film after 2 states as half girlfriend. So very, very happy about that. Right. देखा कि बाहुबली जैसी सक्सेस फिल्म के बाद आप लोगों की फिल्म लगी है और बहुत ही अच्छा कर रही है. हमने देखा कि हमने रिव्यू किया, लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है. Thank तो you. क्या जब इस तरह से फिल्म सक्सेस होती है, लोगों को पसंद आती है, तो क्या थॉट आता है, क्या टेक होता है आप लोगों का? आई थिंक सबसे अच्छी बात है कि एक सक्सेस फिल्म के बाद एक और सक्सेसफुल फिल्म, यानी कि इंडस्ट्री के लिए अच्छा है. सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऑडियंस पिक्चर देखना चाहती है.
इट्स नॉट कि एक ही बार देखती है, एक ही फिल्म देखती है और फिर घर से बाहर नहीं निकलती. पीपल लाइक टू बी एंटरटेन. समर हॉलीडेज हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं, अभी काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिस में भी छुट्टियां शुरू हो जाती है. गर्मी इतनी है, लोग जाके कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग इंडोर ही करना चाहते हैं. सो वी आर प्रोवाइडर्स ऑफ दैट एंटरटेनमेंट. तो बहुत अच्छा लगता है व्हेन दे अप्रूव एंड से वी आर वेरी हैप्पी टू गो एंड सी योर फिल्म. और उसके बाद जो अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं आई फील अ फिल्म डूइंग वेल. हम लोग सब कहीं ना कहीं जो चर्चा थी कि उस वजह से कोई दूसरी फिल्म को हार्म ना हो, पर मुझे तो लगता है उससे पॉजिटिव ये हुआ है कि लोग थिएटर आना चाहते हैं. सो इंस्टेड ऑफ हार्मिंग, आई थिंक सक्सेस हैज बेनिफिटेड आवर फिल्म टू आल्सो गेट कंज्यूम्ड बाय मोर पीपल. एक्चुअली बिकॉज ऑफ द डिजिटल एज, आजकल क्या हो गया, पीपल रादर वेट एंड गो और सी इट ऑन द फोन, सी इट ऑन टीवी. तो अगर पहले दिन इतने सारे लोग आ रहे इकट्ठा होकर, दैट्स अ वेरी 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 गुड साइन. सो थैंक यू टू एवरीबडी हु इज come out to support the film, to enjoy the film, and to all the people that are going to go today, continue watching it. A big thank Yes. you from us. कुछ डैडी के साथ मतलब बातें हुई क्या? मेरी reaction ज्यादा था बात हुई उनका? मुझे लगता है. उन्होंने मुझे क्या भी फोन कर reaction दिया. नहीं, उन्होंने मुझे फोन किया. बहुत वो इतने एक्साइटेड हो गए, इतने खुश थे फिल्म देख के कि उन्होंने कहा कि आज मैं कुछ बहुत धमाकेदार खाना खाने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत हेल्दी खाते हैं ना. तो उन्होंने बोला कि मैं जो खाने वाला हूँ ना आज सेलिब्रेट करने के लिए. तो बहुत अच्छा लगा. एंड उन्होंने अर्जुन का नंबर भी लिया मुझसे और बोला कि आई रियली हैव टू स्पीक टू अर्जुन. एंड ही लव्ड हिम इन द मूवी ऑल्सो. तो अच्छा फीलिंग है. अर्जुन आप भी कुछ बोलने वाले थे. तू इंटरव्यू कर रहा है कि सवाल पूछ रहा है? नहीं, मैं वही कह रहा था. उनका फोन आया आज सुबह सुबह जब उन्होंने फिल्म देखी और मुझे वही बता रहे थे कि श्रद्धा की फिल्म उन्होंने जब भी दिल्ली में देखी है तो हमेशा वो चली है, लोगों को पसंद आई है. बट द गुड पार्ट वाज एज अ पेरेंट ऑफ कोर्स ही वाज एक्साइटेड, बट बतौर एक्टर जब इतने दिग्गज कलाकार आपकी तारीफ करते हैं और खुले दिल से करते हैं, तो एज एन एक्टर यू फील वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज द एक्सपीरियंस दैट मैन हैज, एंड टू बी एबल टू से ही लव्ड माय परफॉर्मेंस, ही लव्ड द फिल्म. तो यू ऑलवेज फील स्पेशल एज एन एक्टर व्हेन यू रिसीव प्रेज फ्रॉम अ फेलो एक्टर. वो हमेशा चीज़ बहुत मायने रखती है. इट डजंट मैटर when that praise comes. लोग होता है ना 6 महीने बाद भी कोई कलाकार पिक्चर देख ले और आपको बोले ना, you feel very very nice when people from your own community like you for the work that you're doing. Any more हेलो questions? श्रद्धा. Hello. हेलो मैम, आपका फोन खड़ा है. हाँ तभी मैं कर रही हूँ. अच्छा, आप लाइव कर रही है. अच्छा जी, सॉरी. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज की सुबह कैसी थी आपकी? नर्वसनेस थी या एक्साइटमेंट थी? कैसी थी आज की सुबह आपकी? आप दोनों की सुबह आज कैसी थी? ये एक्चुअली पहली Thank बार है ना you. कि Someone's asking this Yeah. question. Interesting. ऑनेस्टली बिकॉज आई डोंट थिंक फ्राइडे के दिन हम लोग ज्यादा बातें करते हैं ना. फ्राइडे के दिन ज्यादा एक्टर्स बाहर आके इंटरव्यूज नहीं करते. एक्चुअली दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन यू. Very nice question. और आप लोगों ने बिहार में शूटिंग की. बिहार के बारे में बहुत प्री कंसीव नोशंस हैं. आप लोगों को पर्सनली बिहार कैसा लगा? आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हमने फिल्म के जरिए वही तोड़ने की कोशिश की है जो वहाँ की प्री कंसीव नोशंस है. वी ऑलवेज वांटेड टू मेक श्योर कि लोग नए तरीके से नहीं पर असली तरीके से देखें. क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी फिल्मों में हम देखते हैं कि गैंगस्टर, पॉलिटिशियंस, पुलिस ऑफिसर्स बिहार से हेल करते हैं. कभी भी आपने ये नहीं देखा कि जो मेन लीड होता है रोमांटिक पिक्चर का वो एक गांव से आता है जो बिहार से है. सो वी वांटेड टू मेक श्योर वी डू जस्टिस. सो मोर देन अस जस्ट शूटिंग देयर, जरूरी था कि वहाँ से बाहर निकल के भी when you go out and shoot the film everywhere else, the characters should speak and behave the same way. पर वहाँ पे जो गोल चक्कर है वो तो सभी जानते हैं. मैं जब प्रमोशन पे भी गया था, मुझे याद है कि मैं होटल से बाहर नहीं निकल पाया था. मैं कुछ साल पहले गया था, तो वहाँ से जो प्यार मिलता है उन लोगों से तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है. Whether you shoot in UP, Bihar, across India, I think Bombay, the good part is people are used to shooting, so they give us that space where they know they meet us all the time. When you go to these places, for them it is so nice that they will wait for even 2 to 3 hours just to catch a glimpse while we are working. And they respect the fact that you can't take pictures, they're okay. They just want to wave. Yeah. Which is so, I mean, that's the simplicity of your audience liking you. Exactly. Is a wave. Exactly. And you know, when I started out as an actor, I know मैं थोड़ा meander कर रहा हूँ. हम गुंडे की शूटिंग कर रहे थे कोलकाता के कोयले के खदानों में, आगे चल के 3 घंटे दूर. तो मेरी इशकज़ादे ही लगी थी उस वक्त. तो कहीं ना कहीं लोग रिएक्ट कर रहे थे. रणवीर, मैं, प्रियंका, हम सब, इरफान सर, सब शूटिंग कर रहे थे. तो कहीं ना कहीं मेरी एक फिल्म लगी थी. तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि यार इतना रिएक्शन क्यों दे रहे हैं, कि मतलब यू नो मे बी देव सीन समथिंग और द अदर. बट then my staff told me, no, raise your hands, they've been waiting to see you. And that was the first time where I ever did this, to wave. And I swear to you, it is such an overwhelming emotion. When people just wave back and they smile and they cheer for you. Yeah. That is, because you might never be able to meet all of them and shake hands or take selfies, but just a wave for them or a smile towards them while you're working for them is
is the purest form of connecting with your fans, and it is special when we shoot across the world, but definitely in the heartland when we go. They're very, very simple. They're so passionate about their feel for you. They call you with their character with your character names. You know, to be called Parma, to be called Bala. You know, these are things that I can't quantify and explain to you कैसा लगता है, because उसी के लिए तो आदमी काम करता है कि एक आइडेंटिटी बने ऐसी जहाँ पे लोग आपको आपके किरदारों से जाने. तो बहुत अच्छा लगता है. मतलब it's special across the country to shoot. क्या बात है सर. It's all about gadgets and technology. जी. So are you personally a gadget freak or something? My sister makes fun of me. I'm not quite the gadget freak that people assume that any youngster is. Actually, my sister is the reason I understand most of the gadgets, because I leave it to her. She's a very big tech geek. She's aware of everything new, every app to download, anything possible that my house needs or I need. I have to call her up and ask her, because मैं इतना lost रहता हूँ काम के चक्कर में that I'm not able to actually get so involved in making sure things are okay. तो मेरे टीवी के HD कनेक्शन से लेके मेरे आईफोन को चेंज करने से लेके छोटी छोटी चीज़ें, whatever it is, she is the one who actually helps me out. जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ, I love to watch football, but sometimes you don't get the perfect channels on every television that you're there. तो she is the only reason, वरना मैं पागल हो जाता अगर वो नहीं होती ना. मेरे वैन के अंदर भी उन्होंने पूरी जो टेक्नोलॉजी सेट की है, it's all her. So yeah, she should be coming here more often than me. Your turn. What's your favorite gadget? Mac Pro. Computer. Mac. हाँ So पूछ. honest question for an honest answer. Honest question for an honest answer. Yeah. So I Okay. need an honest. What is the real motive visiting Reliance Digital today? What is the real motive? मतलब Visiting this place today. तुम पुलिस ऑफिसर की तरह जो सवाल करो, हमें सच बताइए, आपका यहाँ आने का मुद्दा क्या है? CID आई है चेक करने. यार मुद्दा ये है, हमारी एक फिल्म आ रही है या आ चुकी है, जो आज रिलीज हो चुकी है. तो ऑनेस्ट आंसर ये है कि रिलायंस डिजिटल का सपोर्ट रहा है हमारी फिल्म के साथ. सो व्हेन समबडी सपोर्ट्स यू for something good, you must come and support them for when they need and they want to do something good. That is the honest answer. पर तू था किधर इतने दिन से? That would be last two. अर्जुन, जानना चाहूंगा कि ऐसी 2 फिल्में आ चुकी हैं जिसमें 2 किताबों पे बन चुके हैं, 2 स्टेट्स जी, हाफ गर्लफ्रेंड. जी. श्रद्धा आपके लिए पहली फिल्म है, अब बायोपिक में काम करने वाली साइना नेहवाल की. तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी कौन सी किताब है जिस पे फिल्म बने और जिसमें आप दोनों स्टार करें. अगर ऐसी कोई ख्वाहिश है तो आप बताएं. ये तो बहुत बड़ी ख्वाहिश हो जाएगी कि एक बुक भी चुने जिसमें हम दोनों ही करें. थोड़ा सोचना पड़ेगा. हाँ. थोड़े टाइम में बताती हूँ. नहीं. थोड़ा सोचना पड़ेगा. हाँ, बहुत मतलब- सारी अच्छे बुक्स है, कैसे चूज करें? हाँ मतलब थोड़ा मुश्किल है एक, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू आंसर इट नेक्स्ट टाइम. आई विल ऑनेस्टली रिमेंबर दिस. अभी सोच में लगा अभी दिया. genuinely दिमाग में नहीं आ रहा. One particular book that I would, because I'm not a reader also. मैं पिक्चरें ज़्यादा देखता हूँ, so that's why. Can we pass Behind the bars. mic towards the side? Who's it by? Who's it by? It's on? That would be last. Behind Bars it's called. Chalo, I shall try and read it for sure. But yeah, you guys should suggest it if there's something. Honestly, if anybody reads it, we would love to get material out there from people also. यार. अभी सोच में पड़ गई हाँ. पूरी तरह से. वो Next देखो, time, hopefully आपको उधर हर्डल्स बताऊंगी. की रेस चल रही देखो. धा. वो आप सब मस्त इधर बैठ के वेट कर रहे हो, हम इधर सेंटर दुख देंगे. एक फोटोग्राफर देखो वहां से मस्त खींचे जा रही है फोटो. माइंड ब्लोइंग. उसको सब लुक मिल रही है उस अरे तरह. उसको अंदर नहीं आने दिया. क्यों? चलो. हाँ नहीं आप क्यों? पूछ रहे थे, वो sorry. लेट आई. हाँ? उसको भी तड़ी पार कर दिया आप लोग. So mean, guys. Why is she outside? अच्छा वो अलग से. अच्छा मीडिया के नहीं है, ठीक है. अच्छा, ओके. So, श्रद्धा, जो आपकी अपकमिंग जो उनके बाद फिल्में जो आपकी अपकमिंग फिल्में आने वाली हसीना या जो बायोपिक है, तो आप चाहेंगे कि उसमें भी बारिश के सीन हो, बारिश के गाने आए? आप चाहेंगे? क्योंकि हिट होते हैं. I think the questions मुझे will go लगता है श्रद्धा चाहती है उनके घर पे गीजर नहीं, बारिश का ही वो सेटअप हो बस. but इन्होंने बहुत सीरियसली पूछा है कि मैं चाहूँगी क्या उसमें बारिश हो या ना हो. अगर वो स्क्रिप्ट के मुताबिक होता है तो आई डोंट माइंड. आई डोंट माइंड. आई डोंट माइंड. थैंक यू सो मच यार. थैंक यू. थैंक यू. मेरा सबसे फेवरेट सीन एज एन एक्टर परफॉर्म करते वक्त आई वुड हैव टू से 2-3 सीन्स है.
द वन वेयर आई कम टू श्रद्धा's हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, बिना ज़्यादा कहानी दिए, जब मैं पहली बार रिया के घर आता हूँ और एक लाइन है जहाँ पे मैं पहली बार एहसास करता हूँ कि मेरा दर्जा क्या है और उसका दर्जा क्या है। तो वो पूछती है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या, क्या हुआ? तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं यहाँ पे बहुत बेढंगा महसूस कर रहा हूँ। अब बेढंगा ऐसा शब्द है ना, खुद आप बोलो ना तो खुद घिन आती है। वो बेढंगा महसूस करना मतलब इट इज इमेजिन इन सोसाइटी टू फील आउट ऑफ प्लेस। मतलब कभी ना कभी हम सब ने एक सिचुएशन में महसूस किया यार काश मैं इधर नहीं होता बिकॉज आई डोंट फिट इन। So for me that scene I got affected while doing that scene because that is one of the toughest scenes because it's about emoting with your eyes, showing that नहीं I'm okay, I'm fine यार, but नहीं वो क्या है ना, आपकी अम्मा ने हिंदी में बात किया तो एक अपनापन सा लगा, ऐसा लगा सूखे में बारिश पड़ गया हो। तो he's trying to hold on but you can tell that he's actually breaking down. So that, and of course when I fight with my friend जो मैं रास्ते पे लड़ता हूँ न्यूयॉर्क के, वो सीन, ऐसा सीन मैंने कभी ज़िंदगी में किया नहीं है बतौर एक्टर। बहुत बार उम्मीद की है कि ऐसा इमोशनल ड्रामेटिक सीन मिला जहाँ पे यू आर एबल टू स्क्रीम एंड वेंट, बिकॉज पूरी पिक्चर में क्या है, मैं शैलेश से मार खाता हूँ, डांट खाता हूँ। जो मेरा दोस्त है, ही इज़ द वन पर्सन हु कीप्स गिविंग इट टू मी एज द ऑडियंस वुड कि तू पागल है क्या, ये क्या होता है, आधा पौना डेढ़ चौथाई हाफ, मैंने कहा। तो वो पहला सीन है जहाँ पे आई गेट टू गिव इट बैक टू हिम एंड से अच्छा तुम्हारा प्यार प्यार, हमारा प्यार, मतलब वो बोल नहीं सकते यहाँ पे पर वो हमारा प्यार क्या कुछ नहीं, हाँ बीप। तो वो सीन जब मैं करने वाला था ना, वो मैंने मोहित को बोला यार ये सीन मैंने पढ़ा बहुत बार, मैंने सोचा बहुत बार, बट आई वुड लाइक टू हैव अ ड्रिंक और टू बिफोर आई डू द सीन। तो सुबह सुबह आई हैड 2 tequila shots so I could feel that character because for me I wanted to be very honest with that scene. It is very difficult to do scenes like that without losing your mind. I'm confessing, I actually did have 2 shots early in the morning of tequila and I was empty stomach the whole day while I was doing that scene because I wanted to feel that madness. So those 2 shots of tequila are the reason I could give those shots and I hope you guys like it. Technically, हाँ, last event, जी. हाँ, that's not a bad idea, sir. I agree. ताली हो जाए इस बात पे। श्रद्धा, Yes, of course. to end on a very nice note, श्रद्धा के सुरीली आवाज के साथ चलिए, पर सब साइलेंस हो जाएंगे तो फिर और भी मजा आ जाएगा अपने को। चलिए, स्टे। फिर भी तुमको चाहूंगी, चलेगा? See, we want you to stay a little longer in theater. ओके गाइस, तो ये गाना आप सबको डेडिकेट करना चाहूंगी, आप सबको। थैंक यू वेरी मच, आप सबको जो पीछे थोड़ा भी सा हैं। मुझे भी डेडिकेट कीजिए ना, आपको इतना फिल्म में किया ना, क्योंकि हमारा तो आज इनके लिए थोड़ा सा। हमारा तो एक ही सपना है कि श्रद्धा कपूर हमारे लिए गाना गाए। ओके मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। थैंक यू गाइस। Thank you everybody, Cheers, thank you for cheers. waiting, thank you so much.